I think with ESOFI it has been first a journey within. Lot of conflicts. एसओपी कार्यक्रम जब से हुआ है तब से बहुत भारी परिवर्तन आ गया है और मेरा गांव बहुत जागरूक हो गया है। अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो सारी समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बंद करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होती हैं। तो ESOFI हर लेवल पे होना चाहिए। समुदाय भी जागरूक हो रहा है, इसलिए कार्यक्रम होने चाहिए। ESOFI तो क्रांति ला सकता है। Once in a while, a program comes along that takes up the challenge of questioning deep-rooted beliefs and norms. Norms that shape gender and sexuality stereotypes. Norms that directly and indirectly affect sexual and reproductive health outcomes and the larger human well-being and development goals. Inner Spaces, Outer Faces initiative was one such program that set out to discover ways in which reproductive health programming could be more effective and sensitive to the realities of marginalized women and men. Those 10 days with the female sex workers, I was, I think, not changed like a completely new person, but at least I have changed the way I think. My first reaction was, they're so dirty. They were stinking. For me, it was like, oh my God, how can people have sex for money? We were trying to get a tool done by them, and we were trying to do a vulnerability mapping with them. And I kept on telling them, why don't you draw, why don't you draw? And then I realized they had never held a pen. And that lady took the pen in her hand and she was drawing. Because I think there was a pressure on her also to earn some money, because we were giving them some wage loss to be coming here. Core to ESOFI's approach was its belief in personal transformation and its potential to bring about social change. Sensitive, yet provocative capacity building, coupled with implementation of participatory research exercises with communities at the initial phases, proved to be transformatory for staff, partners and communities. Then she tells me, I have to earn that bread. What condom you're talking about? What pleasure are you talking about? You know, until unless you realize it within, you don't really know how is it going to affect the other people's life also. Because if you don't feel that way, you cannot really make a change for other people also. But today I realize that. It's just because how it has helped me, you know, shed my inhibitions, shed my fear, shed my pressures, that I can say that it's going to work for other people also. तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मीटिंग में मिलेंगे, जाएंगे तो कुछ फ़ायदा है, फ़ायदे की वजह से पैसे के चक्कर में नहीं जाते। इतना कभी किसी से प्यार पाए नहीं थे। माँ बाप जो थे बचपन में मर गए। भाई बहन से प्यार मिला नहीं। आप लोगों को देख लिया तो अपने समझ लिया कि भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, आप ही सब कुछ है।
लखनऊ के अंदर कोई है हम लोगों से मिलने वाला, बोलने वाला, चालने वाला, कम से कम यही बात हुई थी। क्या करें, मजबूरियाँ हम लोगों को पिलाती है। मजबूरी यहाँ लाके हम लोगों के मतलब 2 पैसे के लिए हम लोग यहाँ आते हैं कि नहीं कमाएंगे तो हमारे लड़के बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। हम लोगों पैसे के खातिर पूरा कपड़ा भी जिस्म का उतारना पड़ता है। वो कभी कभी बदतमीजी भी करने लगते हैं, ऐसी बदतमीजी करने लगेंगे कि नोचना, घसोटना। आदमी एक बिल्कुल गिरा हुआ आदमी होता है। सब आदमी भी गलत नहीं होते और हर इंसान भी गलत नहीं होता है। पहले औरत शिक्षा दे आदमी को, कस्टमर को, कि देखो भाई बिगड़ कंडोम से हम नहीं कराएंगे। देखो औरत में सुधार लाओ। जब तक कि औरत नहीं चाहेगी तो मर्द क्या जाने। मर्द तो एक भौरा होता है। आदमी कहेगा नहीं यार ये तो कंडोम लगाती है, वो दूसरा कहेगा नहीं यार बिगड़ कंडोम पे करेंगे, तो उसको वो भी औरत कहे कि हम कंडोम के अलावा हम नहीं काम करेंगे। उनका एक अपने आप को देखने का नज़रिया बदला है। खुद को जो रिस्पेक्ट नहीं, उनको लगता था ना मेरा शरीर है, क्या होता है, वैसे भी मैं किसी काम की तो हूँ नहीं, समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है। आसोफी के बाद ये चीज़ है कि उन लोगों ने अपनी कदर करना सीखा है। ट्रांसपोर्ट नगर जब हम पहले जाते थे तो ट्रकर्स के साथ मतलब ये रहता था कि क्या पता वो कुछ ऊट पटांग पूछ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगी। अगर आता भी होगा तो भी इतना खुला मैं कैसे बता पाऊंगी उनको। लेकिन जेंडर और सेक्सुअलिटी की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में अब ऐसा डर नहीं रहा है, अब बात कर सकती हूँ। और अगर वो कोई कुछ भी मतलब प्रश्न पूछते हैं सेक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आराम से उनको अब बता सकती हूँ। हमारे को ये लगता था कि देखो लेडीज इसको शर्म नहीं आती, कैसी कैसी बातें करते, कैसे घूमते हैं, हम नहीं कर सकते, क्या बताया कि चलो चलो यार नहीं रुकना यार, क्या देखना है इसको, पागल है तो हम पागल थोड़ी हैं कोई। लेकिन फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा, एक दो बार देखा तो महसूस हुआ कि यार वास्तव में ये भी एक औरत है, किसी की माँ बहन बेटी है, और इतनी हिम्मत, इतनी में ताकत देखो ट्रांसपोर्टर के अंदर आ गई। जब ये जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, उससे पहले इतना खुलापन नहीं था, डर था अंदर कि किस तरह से इस विषय पर इतनी बात करेंगे। मेरे मन में तो वो जिज्ञासा थी कि क्या क्या होगा उसमें, सेक्स के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे उसमें, ऐसा क्या होगा और नया। घर पे भी इनके बारे में कभी बात नहीं करते थे, हस्बैंड वाइफ भी आपस में इतनी खुली चर्चा नहीं करते थे कि क्या है क्या नहीं। पर जब से ट्रेनिंग अटेंड की उसके बाद में हम दोनों भी आपस में बहुत खुली बात करते हैं, और जो भी मतलब वहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्स दिखाए थे उनका यूज़ भी किया है। अब मैं खुद मतलब मेडिकल स्टोर जाकर कंडोम खरीद सकती हूँ, इतनी मैं कैपेबल हो चुकी हूँ इस ट्रेनिंग को, मतलब जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद। सबसे खास बात इसकी ये है कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आइसोफी की वजह से तुम्हारे बीच फ़ाइट कम हो गई। शी सेड नहीं तुम झूठ बोलते हो, ये सारी फाइट खत्म हुई है मेरी वजह से। शी इज स्टिल नॉट एबल टू रियलाइज कि द काइंड ऑफ चेंज शी सीज इन मी इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोफी। आई वॉज वेरी एग्रेसिव, छोटी सी भी बात होती थी मैं नाराज़ हो जाता था या डांटना शुरू कर देता था। बट उसके बाद आई स्टार्टेड वैल्यूइंग ए वुमेन, द काइंड ऑफ वर्क दे डू, द वे दे कंट्रीब्यूट टू अ फैमिली। सो पर्सनल लेवल पे तो मैं कहूँगा कि बहुत चेंज हुआ है। बदलाव जो हम में आया है, वो बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर हम सभी लोग ने मंथन किया, और वो मंथन करने का जो मौका है वो आइसोफी ने हमें दिया।
इसोफी कार्यक्रम से जुड़ने के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ कि जेंडर की समझ आई। जेंडर को जो हम बोलते हैं कि एक सामाजिक लिंग, वो जो बना देता, समाज जिसको बना देता, वो उस दीवार को हम तोड़ने में अपने अंदर में सफल हुए। हम लोगों ने क्या किया कि पहले कम्युनिटी के कुछ जो लोग थे जिनको हमें लगता था कि इनको बदलने से थोड़ा गांव में ज़्यादा असर पड़ सकता है, ज़्यादा के गांव में लोग चेंज हो सकते हैं, तो हम उन लोगों को एक नए वातावरण में ले गए। Promoting interspousal communication around issues of sex and sexuality, organizing women for collective action, and identifying positive role models for influencing communities were some of the ways which were proving to be effective. The walls of rigid gender and sexuality norms were finally beginning to show cracks. अभी हम लोग जो गतिविधि कराएंगे उसमें यही देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें एक औरत की तरह मेरे को अच्छी लगती है। पता नहीं पति से कहा है या नहीं कहा है तो भी या नहीं कहा है तो भी हम उसको पर्ची पे लिखेंगे। और क्या एक बात जो हमें नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, एक महिला होने के रूप में, ठीक है। कोई भी पर्ची किसी के भी नाम से बताई नहीं जाएगी और कोई किसी को नाम भी लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं, केवल ये बात लिखते हैं कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। न तीर ने घायल किया, न घायल किया तलवार ने, हमें तो घायल किया अपनी पत्नी के प्यार ने। वाह, जब मन नहीं होता तो भी करना पड़ता है, ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे कंडोम लगाकर सेक्स करना पसंद है क्योंकि वे इस गर्भ निरोधक और एड्स से भी बचाता है। बहुत अच्छी बात। जो पसंद नहीं है वो ये कि मुझे बीवी का ज़्यादा मायके जाना पसंद नहीं है। मुझे एमसी में बिना निरोध के सेक्स करना भी पसंद नहीं है। पति पत्नी प्यार से रहते हैं और बातचीत करते हैं तो ख्याल रखते हैं, यहाँ ज़्यादा मन लगता है। मैंने ये कदम उठाया और एक संकल्प जैसा लिया मन के अंदर के मेरे गांव की महिलाएं जो इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो ये पुरुषों से दबी हुई रहती हैं, हर जगह एक परंपरा है कि कहीं जाओ तो अपने आदमी को बोल के जाओ, घर में कुछ भी करना है तो अपने पति से पूछ के करो। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों शुरू से मैंने कभी अपने परिवार में, अपने पीहर में, जैसे कि हम शादी से पहले मैंने कभी पूछा नहीं और ऐसे रहे। तो यहाँ आके मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। कठपुतली टाइप इनको बना के खाली मेंबर बना देंगे और ये घर में बैठे रहेंगे, यहाँ से गाड़ी से पर्दे में जाएंगे और पंचायत समिति अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसलिए हमारे परिवार वालों ने स्वीकृति दे दी हम लोगों को कि हाँ आप बन जाओ पंचायत समिति मेंबर। पर इन लोगों को ऐसी आशा नहीं थी कि हमारे विपरीत ये इतना कुछ करेंगे और ऐसे गाँव में जैसे मैं घूमती हूँ और घर घर में ये घूमेंगे। और जेंट्स के साथ जाना तो बहुत ही बुरा मानते हैं हमारे यहाँ। सब लोगों ने बहुत ऐतराज़ किया। हमारी सास हैं, उन्होंने भी बहुत बुरा भला कहा कि घूंघट भी नहीं निकालते हैं। और मैंने कहा बाहर जाऊंगी तो मैं घूंघट नहीं निकालूंगी, घूंघट निकालूंगी तो मेरी कोई पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब बाहर निकली हूँ तो मैं घूंघट मेरे को हटाना ही है और ये परंपरा किसी न किसी को तो तोड़नी है, किसी न किसी को तो बुरा बनना ही है। तब जाके महिलाओं की ये परंपरा जो है पर्दा सिस्टम और ये खत्म होगा। यही सोच के मैं बाहर निकली। तो महिला सरपंचों को जब उनको बताया गया जेंडर के बारे में, कि लिंग भेद के बारे में, कि इस तरह से आपका भी अधिकार, एक पुरुष सरपंच है उसका भी अधिकार उतना ही जितना आप महिला सरपंच हो, आपका भी उतना ही अधिकार है। आज मैं खुलन बात कर सकूं। हाँ घूंटो काढ़ा, कोई बुजुर्ग हुआ तो वाके सामने काढ़ा, बाकी आप झिझक बात करा। बुढ़ा कोई घूंटो तो काढ़ा, लेकिन आपने बोल बाई की जो आपने खेनी जो बात खेनी वजह तो आप खेवा। दो साल के अंदर यहाँ पे जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ महिलाओं में एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ। कोई विशेष बात नहीं हुई, महिलाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई, कोई विषय पे चर्चा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ओकेजनली जो गवर्नमेंट का एनजीओज के कोई फंक्शन होते हैं वहाँ जाके इकट्ठा होकर इनकी बात सुनती है। इससे उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए उनकी सारी सोच।
बेटा है कुल का दीपक तो बेटी है बातियाँ। सरगर्व से हम सबका उठाती हैं बेटियाँ। माना की वंश बेल है पुत्र से बढ़ती, बहुएं भी तो होती हैं किसी की बेटियाँ। अबला समझकर इसको न तकलीफ़ दे कभी, दुर्गा का रूप धर के आती हैं बेटियाँ। ये मेरी प्यारी बहनों जरा सोच कर देखो, क्या कर सकेगा विश्व अगर होंगी न बेटियाँ। कि आप लोग बेटा बेटी में क्यों इतना अंतर मानते हैं? बेटी भी तो अपनी है, बेटा भी अपना है। कितनी दुख की बात है कि आज हमारा समाज है, आज हमारा देश है, उसमें आज ऐसी लड़कियों की ये दुर्दशा है, उसको हम कैसे सुधारें? हम कह रहे हैं कि बेटे की चाहे शादी हो जाए, लड़की की अपनी शादी हम अपनी इच्छा के अनुसार वो पढ़ लेगी, उसी के बाद में शादी हम करेंगे। महिलाएं हमारे यहाँ जागरूक हैं, सब समझ रही हैं इस बात को। By building self-esteem of young girls, iSophie encouraged youth to question gender stereotypes and norms, especially around issues such as mobility, son preference, and early age at marriage. आपको बेटा ही क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए? लड़कियों को क्यों बाहर जाने पाबंदी, लड़कों क्यों नहीं? पति को परमेश्वर क्यों मानते हैं? अगर लड़के चाहें तो वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकते हैं और माता पिता उन पर पैसा लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर ऐसा क्यों नहीं है कि उसे पढ़ना है या शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है, ऐसा क्यों? करती हैं, मगर लड़कियां अपने बस में कहाँ फिर रहती हैं भाई, वो तो उन्हीं परिवार वालों के ही साथ में सीमित होकर चलेंगी। शादी के बाद आशीर्वाद दिया जाता है,